एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ योर वीकली हॉरोस्कोप। ये हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके इस वीक, और क्या इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस टैरो आपको इस वीक के लिए देना चाहता है। और इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक है, आप वहाँ जाकर अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज टू पाइसेस हम जाएंगे। ऑलराइट, सो एरीज, ये आपका जो वीक है ये कैसा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, बेसिकली जॉब, बिजनेस। ये वीक कैसा है आपका एरीज। ऑलराइट, वी हैव द कार्ड 2 of swords here, and when it comes to your mental health, stability, happiness, basically peace of mind, personal your personal life, so we have King of Pentacles here. So first and foremost thing जो है यहाँ पर, when it comes to your career, when it comes to your education, here it is saying being unable to or unwilling to make a decision, follow your own heart rather than trying to make others happy, pretending there is no problem, over analyzing a situation. Basically you're not ready to take a decision. Basically there are things, situations which is confusing you, and कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, ये जो situations हैं, ये आपको डिसीजन नहीं लेने दे रही है. somehow you want to take the decision but unable to take any decision. you are in a situation जहाँ पर आप एनालाइज कर रहे हो बट आपसे ठीक से एनालाइज भी नहीं हो रहा है. मे बी you're over analyzing, बट यहाँ पर जो है एक तरह से कुछ दिख नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा. and 2 of swords, I mean it represents a severe confusion. So you already know the answer. First of all, you already know the answer. यहाँ पर बस एक डिसीजन वो आपसे जो है वो लिया नहीं जा रहा है, बट जो भी आप डिसीजन लोगे, you are gonna be in control of your decision. So try to make a decision on the basis कि आपको जो है उसमें are you passionate about that particular thing? Can you do this? Can you do that particular thing for a long term? You have to ask this to yourself and then you have to make a decision, because यहाँ पर आपके लिए थोड़ी मुश्किल नज़र आ रही है, confusion नज़र आ रही है. स्पेशली 2 चीज़ों को लेकर भी हो सकती है. इन योर करियर, इन योर एजुकेशन, यू आर कन्फ्यूज, यू आर काइंड ऑफ एनालाइजिंग द सिचुएशन बट यू आर जस्ट not able to analyze as well, or you are over analyzing the situation. King of Pentacles here is showing your basically your personal life, and it is showing your peace of mind. Somehow you want stability. I mean everybody wants stability in their life, but you in this week are focusing towards stability. How can you get this stability? How can you achieve this stability? And उसके लिए जो आपने professional decision लेना है, तो उस चीज़ को लेकर you kind of are like, I want something in my profession, in my career which is long term. तो वो लॉन्ग टर्म चीज़ क्या है, उसके लिए मुझे एफर्ट करने, ये आपके मन में ये चीज़ चल रही है. यू डोंट वांट अ शॉर्ट टर्म सक्सेस, यू वांट अ लॉन्ग टर्म सक्सेस, एंड इस चीज़ के लिए आप एफर्ट भी कर रहे हो. एंड पीस ऑफ माइंड की जहाँ तक बात है, Pentacles is a quite stable energy. Your mind is stable. You are in a stable condition here, so you can take the right decision in your profession, in your career. So you do not need to worry कि पता नहीं मुझसे लिया जाएगा सही डिसीजन, मेरा डिसीजन गलत ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, because your mind is very much stable here, and you will take the right decision. So do not worry, you will take the right decision. Mind is stable, mind practical होके सोच रहा है साथ में, because Pentacle is again the energy of Taurus, Virgo, Capricorn, and these are practical signs. These are the signs which says that you have to go out in the world, out in the society, so you need to be practical. So you are going to take this decision very practically in your career, basically in your professional life. So do not worry, you are going to take the right decision. जो भी आपको चीज़ stability लेकर आएगी in long term, whatever you can do मतलब continuously in long term, you will choose that. यहाँ पर आपके लिए जो है गाइडेंस क्या है टैरो की तरफ से? What's the guidance coming for you for this week, Aries? All right, we have the card Love. I commit
to the practice of seeing the good in all things. You are looking to the positive side or positive aspect of everything. You are being optimistic here. You're not being over optimistic, which is great, because over optimism भी जो है वो गलत है. You are very optimistic. You are going to follow your passion, and you are, you know, looking towards a positive aspect of your life. And this is also guidance for you to look towards positive aspect. Do not think कि अरे ये glass तो half empty है. No, see it as half full. Try to be more positive. इसकी यहाँ पर guidance आ रही है for you Aries for this week. Alright dear, so this was the reading for you, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Taurus, so this is your weekly horoscope. आपका जो week है in terms of your career, in terms of your education, ये कैसा रहने वाला है? Alright, basically job and everything, career, professional life. So we have 10 of your 10 of wands, and when it comes to your health, happiness, your personal life, mental well-being, so we have the card strength in reverse. So यहाँ पर जो है 10 of wands is showing working too hard or too many hours, the need for balance in life, let others help you, health problems due to stress. You're burdened, you're overwhelmed by the opportunities, or you can say responsibilities, because opportunities, maybe you have to work, right? So you are overwhelmed by work in your career, in your education. बहुत सारा आपको यहाँ पर काम नज़र आ रहा है कि I have to do this, I have to do that, और उसकी वजह से यहाँ पर you are quite stressed कि पता नहीं कैसे होगा ये काम complete. I have so much work to do, and यहाँ पर समझ कुछ आ नहीं रहा है, because अगर it's like the smoke is like Rahu creates illusion in our head, in our mind, and we feel कि अब किधर जाना चाहिए, अब क्या करना चाहिए. तो ये सिचुएशन जो है आपके करियर में नज़र आ रही है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके एजुकेशन में नज़र आ रही है. यू आर एक्चुअली, दिस इज कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है, वर्क तो है, जो वर्क प्रेशर तो यहाँ पर है, बट आप उसको हैंडल भी गलत तरीके से कर रहे हो. समहाउ यू रियली नीड टू फील कि अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो ठीक है. आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिल पर लेके कर रहे हो, बिकॉज जो भी ये काम है यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, यू वॉन्ट टू कम्प्लीट इट, यू वॉन्ट टू वर्क टूवर्ड्स इट, एंड समहाउ वक्त नहीं है और बहुत सारा काम है तो हौच पोच हुई हुई है, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. बट वट एवर द वर्क इज़, यू आर पैशनेट अबाउट इट, यू वॉन्ट टू डू इट. एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है जो कि रिवर्स में, जो कि आपकी एक तरह से मेंटल हेल्थ, हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड स्ट्रेंथ कार्ड ऑफकोर्स अगर ये अपराइट होता तो यू नो माइंड स्टेबल, और सॉरी स्ट्रॉन्ग होता, नॉट स्टेबल, काफ़ी स्ट्रांगली बिहेव करता है, हार्डकोर, और एक तरह से इमोशनली ना डील करके प्रैक्टिकल वे से डील करता. बट यहाँ पर जो है, बिकॉज इट्स इन रिवर्स दिस वीक फॉर यू, तो टॉरस आपके लिए जो है यहाँ पर माइंड की स्टेबिलिटी थोड़ी कम नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं आप थोड़ा प्रैक्टिकल होने की यहाँ पर ज़रूरत है. एंड यू शुड नो दिस थिंग दैट यू हैव द स्ट्रेंथ हियर, यू हैव द स्ट्रेंथ. सो डू नॉट वरी कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा. नो, आप कर पाओगे. यू हैव द स्ट्रेंथ. जस्ट कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान नहीं रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है. इस स्ट्रेंथ को पहचानो दैट यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ. यू कैन, चाहे वो इतनी मुश्किल से गुजरना है या फिर कुछ भी. यू आर पैशनेट अबाउट दिस वीक, अबाउट योर करियर, बट द थिंग इज देयर इज लॉट गोइंग ऑन, जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज फील हो रही है, स्ट्रेस फील हो रहा है. माइंड को थोड़ा और प्रैक्टिकली चलाने की ज़रूरत है, एनालिटिकल वे से चलाने की ज़रूरत है, और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है. अपने आगे एक ऐसे जो एजेंडा बना लो कि ये काम मैंने आज इस दिन करने हैं, और फिर जब आप वो टिक करते जाओगे एक एक काम को, तो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आएगी एंड यू विल फील बेटर हियर. बट यू शुड नो दैट यू हैव द स्ट्रेंथ, डू नॉट वरी. और यहाँ पर कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ जो है, यहाँ पर यू रियली नीड टू टॉक, you really need to communicate. That's really important for you, especially with your family, with the physically जो लोग आपके साथ present है, उनके साथ आपको बात करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको uplift कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको boost कर सकते हैं. यहाँ support की ज़रूरत है, और थोड़ा और practical चलने की, practical सोचने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको इस वीक. टॉरस आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है? टॉरस के लिए गाइडेंस, Alright, we have the card Abundance. I am a limitless being and I can manifest
ever I desire in the physical reality. तो यहाँ पर जो है be optimistic. पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है. यू आर अ लिमिटलेस बीइंग. आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है, अनलिमिटेड पावर एनर्जी है. उस पावर एनर्जी को महसूस करने की बात है. आप अपनी डिज़ायर्स को, आप अपने ड्रीम्स को एक रियलिटी में बदल सकते हो और ये आपके लिए ब्लेसिंग भी आ रही है. एंड थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव. आई नो सिचुएशंस थोड़ी यहाँ पर आपके फेवर में ना हो इस वीक, पर यू ऑल्सो हैव द स्ट्रेंथ. यू जस्ट हैव टू रियली सी, और एक तरह से अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना आपको ज़रूरी है. दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू, टॉरस. Alright dear, so this was the reading for you. This was the message coming for you for this week, Taurus, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए try to solve or try to simplify things. Make a schedule, make a list, checklist बनाओ. जैसे जैसे टिक करोगे अपने आप sense of accomplishment आके you are gonna feel that yes, you have the power, you have the strength. Alright dear, so this was the reading, and yes, take care. Hello Gemini, hope you are doing fine dear. So this is your weekly horoscope. ये आपका जो week है ये कैसा रहता है in terms of your career, in terms of your job, business or education. ये week कैसा है? Alright, we have the card King of Wands. When it comes to your health, happiness, personal life, peace of mind, mental health stability, ये week आपके लिए कैसा है? Alright, we have the card Nine of Wands here. Alright, so यहाँ पर जो ये सबसे पहले जो ये King of Wands है, it is saying motivational, inspiring, theatrical, ambitious, take a leadership role, step into the spotlight, public speaking, keep your eyes on the big picture, communicate your vision, don't be sensitive to criticism. Let me tell you one thing, this week you can get criticized. You can get criticized because of your dreams, because what you want in life. People can say that your dreams are kind of not realistic and unrealistic है dreams, और इस वजह से आपको criticism मिले. See, criticism can never be constructive. It can never be constructive. It is always gonna disrupt or always gonna take your peace of mind away. क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इन चीज़ों को लेकर इतना सेंसिटिव नहीं होते. मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर सेंसिटिव, वी आर सेंसिटिव बीइंग्स. और यहाँ पर जो है you can get criticized because of your passion, because Wands represents passion. and यहाँ पर Gemini आप काफ़ी ज़्यादा motivated रहोगे, inspired रहोगे इस week, काफ़ी ज़्यादा ambitious रहोगे इस week. you are also gonna take leadership role, you are gonna step into the spotlight. ये सब कुछ होगा, and you can even do the public speaking here. keep in mind that you need to focus on the big picture. you need to focus कि ये मेरी destiny है, अगर मैं ये सारे काम करूँगा तो मुझे वो जो प्राइस है वो मिलेगा. So you have to be optimistic here as well. You can get criticized because of what you want, and here the guidance is to be resilient. Power of resilience is really needed in this week for you, because Nine of Wands shows again ये Wands की energy. Again you are passionate here as well, but you need to be more optimistic. एंड यहाँ पर पैशन काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है. जो भी आप स्टेप लोगे अपने एजुकेशन में, अपने करियर में, जॉब में, बिजनेस में, वो इस वजह से लोगे बिकॉज यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ. यू आर नॉट अफ्रेड हार्ड वर्क करने से. आप यहाँ पर लेजी भी नहीं नज़र आ रहे हो. Nine of Wands here is showing your personal life, and it is showing your mental health stability as well. मन में पेशेंस रखी हुई है आपने, जो कि बहुत अच्छी बात है, और आपने पेशेंस से ही डील करना है इस वीक. आपको एफर्ट करने पड़ेंगे. दैट इज समथिंग विच एवरीबडी डू, क्योंकि ये कर्म प्रधान दुनिया, तो कर्मा तो करना पड़ेगा, एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे. पर आप यहाँ पर ये शिकायत नहीं करोगे कि कब तक मुझे एफर्ट करना पड़ेगा, कब ये काम ख़त्म होगा, कब जो हूँ मुझे लाइफ में सक्सेस मिलेगी. ये जो सारी चीज़ें हैं इसकी तरफ शायद आप इतना ध्यान ना दो. सिर्फ आप ये ध्यान दो मेरे ये एफर्ट्स है, मेरा ये कर्म है, और मुझे ये काम करना ही करना है, और मुझे सक्सेस मिलेगी. और
कॉम्पिटिशन्स भी आपके पास आएंगे इस वीक, बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड शोज रेजिलियंस, सो यू आर शोइंग अदर पीपल रेजिलियंस, क्योंकि आपको क्रिटिसिज्म या फिर कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ सकता है इन दिस वीक. सो ओवरऑल जो एनर्जी है इस वीक की, इट्स अबाउट कॉम्पिटिशन, इट्स अबाउट पैशनेट वर्क, इट्स अबाउट पेशेंस एज वेल, और अपने गोल पर ध्यान देना, वो बिग पिक्चर, वो जो आपकी गोल है उस चीज़ पर ध्यान देना कि मुझे ये काम करना है, वो मेरा गोल है, तो मैं एफर्ट ज़रूर करूँगा. तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. पीस ऑफ माइंड की जहाँ तक बात है, माइंड इज़ क्वाइट स्टेबल, इट इज़ टेकिंग द राइट डिसीजन, इट इज़ बीइंग पेशेंट, और यहाँ पर अच्छे यहाँ पर कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, यानी अच्छा ही ये वीक आपके लिए जाएगा. यू हैव टू जस्ट स्टे मोटिवेटेड, यू आर ऑलरेडी मोटिवेटेड और पैशनेट अबाउट योर वर्क, सो दैट्स ग्रेट. आपके लिए यहाँ गाइडेंस क्या आ रही है इस वीक के लिए जेमिनी? All right, so we have the empathy card. Empathy is saying I am open to seeing both side of a situation. तो आप जो हो, जो भी डिसीजन लोगे अपना, वो दोनों साइड जो है वो देख के ही लोगे. एक साइड बस आपने देखी और दूसरी नहीं देखी, तब भी आप गलत डिसीजन ले सकते हो. बट अगर आपने दोनों साइड देख के कोई डिसीजन लिया है, दैट विल बी करेक्ट, बिकॉज वो एक फिर बैलेंस्ड एनर्जी बनता है, और जब हर कोई चीज़ बैलेंस में होती है उसका रिजल्ट अच्छा निकलता है. तो दिस वीक यू आर काइंड ऑफ बैलेंस्ड एज वेल, यू आर पैशनेट अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू अचीव, यू हैव दैट फायर ऑफ पैशन. अगेन वॉन्ट्स इज दैट फायरी पैशनेट एनर्जी, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस साइन. So Leo and Sagittarius are sattvic signs as well, so they are giving you that sattvic fire and fire to purify. And definitely जो आपके लिए Gemini ये week है, आप balanced काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हो, and you are passionate about what you're doing. So काफ़ी overall बहुत अच्छा वीक जाने वाला है आपके लिए. एंड दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, दिस वाज द इंफॉर्मेशन कमिंग फॉर यू फ्रॉम टैरो. ऑलराइट जेमिनी, सो दिस वाज द रीडिंग. आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो कैंसर, सो ये जो आपका वीक है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस, ये कैसा रहने वाला है, बेसिकली प्रोफेशनल लाइफ. सो वी हैव द कार्ड wise counselor here. When it comes to your mental health, stability, happiness, when it comes to your peace of mind and family, etc. So we have the high priestess here. काफ़ी अच्छा वीक ही जाता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर. जो वाइस काउंसलर है, इट इज़ शोइंग योर बेसिकली प्रोफेशनल लाइफ, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस. सो यूनिटी विद ए स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी. So ask the divine for help and trust the answers will come. Compare traditional methods with new ideas to see which is best for you. तो यहाँ पर जो है wise counselor is like Jupiter here. So Jupiter is a teacher, preacher, counselor, advisor. And Jupiter is also astrology, which is not new, it's a Vedic thing. It's a Vedic concept, right? So कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपके in your job kind of situation or your education kind of situation, you will have choices in your life, जहाँ पर आपको जो है ट्रेडिशनल मेथड या फिर एक जो मॉडर्न मेथड है, उन दोनों में से कोई एक चीज़ चूज करनी पड़ेगी. एंड यू विल टेक द राइट डिसीजन. सो डू नॉट वरी, बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव कार्ड. सो यू विल टेक द राइट डिसीजन हियर. बट यहाँ पर जब डिसीजन लेने की बारी आएगी, सो कंपेयर ज़रूर करना है कि मैं इसे अपने यूजुअल मेथड से करूँ या मेरे को न्यू मेथड यूज़ करना चाहिए, ट्रेडिशनल मेथड या फिर एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट, या फिर जैसा मैं करता आया हूँ वैसे ही मुझे वो चीज़ करनी चाहिए, या फिर मुझे कोई न्यू चीज़ जो है, न्यू तरीके से वो चीज़ करनी चाहिए, एक क्रिएटिव तरीके से वो चीज़ करनी चाहिए, अपनी न्यू क्रिएटिव टैलेंट जो है वो दिखाना चाहिए, या फिर वो ओल्ड पुराने वाला ही जो है मुझे फॉलो करते रहना चाहिए. सो यू आर गोना गेट अ चॉइस, you are going to be in a position where you can even get bored in your education schedule, और जहाँ पर you know this is my schedule, I'm going to wake up at this time, I'm going to study at this time and do this do that. तो यहाँ पर schedule में changes यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहे हैं, और वो changes क्योंकि आप बोर हो गए थे तभी वो changes आ रहे हैं. and this change is in your control. And you can even take advice from your grandfather or from your father, any male figure, और एक ऐसे फिगर जो बहुत ज़्यादा वाइज है, बिकॉज इट्स अ पेट्रियार्कल सोसाइटी. मेल इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, द फादर और द ग्रैंडफादर इज द हेड ऑफ द फैमिली. सो इफ यू वांट टू टेक एडवाइस फ्रॉम देम, दैट विल बी ग्रेट.
और यहाँ पर जो ये हाई प्रीस्टेस है, इट इज़ शोइंग योर मेंटल हेल्थ स्टेबिलिटी एंड बेसिकली फैमिली लाइफ. सो कहीं ना कहीं हाई प्रीस्टेस ऑफ कोर्स इट्स अबाउट इंटुइशन. सो योर माइंड इज क्वाइट इंटुइटिव, यू आर गोना टेक द राइट डिसीजन, डू नॉट वरी. और यहाँ पर हाई प्रीस्टेस इज ऑल्सो शोइंग दैट यू आर गोना फील सम कनेक्शन, और बिना कहे कोई बात किसी को पता लग जाए. That is intuition, right? So you are gonna have this intuitive connection with your family members as well. Your family members are actually gonna understand you, even if you don't have the best relationship with them. But this week आपको उनसे सहयोग, आपको उनसे जो है एक support मिलने वाला है, जो कि आपको stable करता है, खुश करता है, एक nourishment provide करता है. And High Priestess definitely shows that if you have to take a decision about your personal life, about romantic relationship, this is not the time. You have to analyze here, you have to see कि आपको जो है आपका मन क्या कह रहा है. It's not the way, it's not the week where you should take any decision related to your personal life, because High Priestess wants you to think, wants you to see what you really want, wants you to make the right decision. So right now, this week, it may not be the best time period to take any romantic relationship decision. Should I be in this relationship? Should I not be in this relationship? Should I commit to this person? Should I not commit to this person? This week you need to analyze this thing. जो आपका मन कह रहा है वो चीज़ ही करनी है. बट इस वीक जो है आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप इस वीक को थोड़ा सा समझने में दूसरे पर्सन को टाइम दो, मतलब आप उनको समझो, वो आपको समझे. इस वीक पर्सनल लाइफ में लव रिलेशनशिप के मामले में डिसीजन के लिए मना आ रहा है. हाई प्रीस्टेस वांट्स यू टू थिंक क्लियरली अबाउट इट, बी क्लियर अबाउट व्हाट यू रियली वांट इन लॉन्ग टर्म. सो दैट इज द मैसेज कमिंग फॉर यू. आपके लिए जो है यहाँ पर टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है इस वीक के लिए. टैरो की तरफ से यहाँ पर जो कैंसर है उनके लिए गाइडेंस है फेलियर. आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आई थिंक इट्स ऑल रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ. आई एम गेटिंग द वाइब्स दैट इट इज़ रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ. समहाउ आपके जो पिछले रिलेशनशिप्स थे या फिर फ्रेंडशिप्स थी, कहीं ना कहीं वो फेल हुई, कहीं ना कहीं वो ब्रेक हुई एंड हार्ट ब्रेक हुआ. बट यू शुड, आई मीन द फेलियर कार्ड इज टेलिंग यू दैट you should understand that a mistake is only an opportunity to learn. You learned about yourself that, you know what, maybe I do not like this type of relationship, maybe I do not like this thing in a relationship, I like that thing in a relationship. You got to know more about you. So do not worry that this relationship is going to fail and again I'm going to be alone. No, it's not like that. Do not worry. High Priestess wants you to again analyze the situation, wants you to see कि आपको चाहिए क्या असल में. अपनी intuition use करो. But this week is not the week where you should take any decision to your personal life, to your romantic relationship. This week you should give time to yourself to absorb your relationship, कि वो कहाँ पर है, किस stage पर है. So this is the guidance coming for you, Cancer, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Leo, so this is your reading. आपका जो week है in terms of your career, in terms of your job, business, education, ये कैसा रहने वाला है, basically your professional life इस week. So we have Page of Wands here when it comes to your mental health, stability, happiness, and your emotional well-being, family life, personal life basically. So we have the 3 of Wands here. All right, तो यहाँ पर जो है Page of Wands is representing your professional life and it is saying enthusiastic, optimistic, creative, impatient, news of exciting opportunity, allowing your creativity to soar, do things that fuel your passions, finish what you start. तो यहाँ पर जो है पेज इज़ अ वेरी इनोसेंट नोविस एनर्जी एंड पेज इज़ लाइक वेरी इंथुजियास्टिक ऑप्टिमिस्टिक. मतलब एक चीज़ के बाद एक दूसरी चीज़ के पीछे भागना. पहली चीज़ शायद से कंप्लीट भी ना हुई हो पर उससे पहली दूसरी चीज़ की तरफ भाग पड़ना और उसको कंप्लीट पहली चीज़ को कंप्लीट ना करना. बिकॉज यू आर इम्पेशेंट, you want to grab other opportunities as well, पर पहली चीज़ तो complete हुई नहीं. तो यहाँ पर you are passionate about your work but it's the guidance for you to complete what you have started. जो next opportunity है, जो next जो आप
अपनी लाइफ में करना चाहते हो वो अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब करो, बट फर्स्ट कंप्लीट व्हाट यू हैव स्टार्टेड. यू आर ऑप्टिमिस्टिक हियर, you are passionate about your work, that can be seen, but finish what you start. That's really important for you. You will get many opportunities where you are like, oh my goodness, I have to grab these opportunities, otherwise these opportunity will go away and will never come back. But ये वाली जो situation है will never come back. It's not like that. You will get more opportunities as, but first you need to complete what you have already started. So that is something, some message coming for you, for your career, for your education and your business as well. When it comes to Three of Wands, it is representing your personal life. यहाँ पर जो है you are waiting for the right time. You are waiting for the right person in your life. ऐसा हो सकता है that this week you are quite impatient when it comes to love relationship. You want कि I want a partner in my life who understands me, जो मेरे हमेशा साथ रहे, और जितना मैं मतलब इस रिलेशनशिप में इमोशनली इन्वेस्ट होती हूँ उतना ही वो पर्सन भी इमोशनली इन्वेस्ट हो, वैसा आप पर्सन जो हो ढूंढ रहे हो. एक डेस्परेट एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है. You really want that partner in your life. And यहाँ पर Three of Wands is also showing that you need to be patient. You need to be patient. Or Three of Wands is also showing that when it comes to your parents, when it comes to your sibling, you need to deal with them with patience. It may happen that you want things to be quick. You want to make quick decisions, but this is not the week where you should actually take quick decisions. This week you should be patient. You should complete your work, your whatever you have started, and same goes with your personal life. You should not be making hurry. You should not be making decision कि भाई मुझे डिसीजन लेना ही लेना है, जल्दी लेना ही लेना है, अगर नहीं लिया तो फिर पता नहीं क्या होगा. Wait. This is the time to actually analyze the situation in your personal life as well. And यहाँ पर जो है Three of Wands is showing that be patient. Be patient with other people. क्योंकि गुस्सा जो है, desperation जो है, एक तरह से जो impatient energy जो है वो आपको कहीं नहीं लेके जाएगी. So आपको patience रखने की अपने रिश्तों में, अपने relations में ज़रूरी है. Patience रखना है. दूसरा person आपकी बात समझ जाएगा, but you need to be patient. That's something which is coming for you, Leo. आपके लिए गाइडेंस क्या है लियो दिस वीक? व्हाट इज द गाइडेंस कमिंग फॉर यू? लियो के लिए क्या गाइडेंस है इस वीक? ऑलराइट, वी हैव द करेज कार्ड. सो आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस. Right? You have the strength here. You have the strength. Have confidence on yourself. कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है that when things are not going in your favor, you feel that मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो गलत decisions ले लेता हूँ, मैं तो बड़ा impatient हूँ. No, you are patient. You have the power of patience. You are very courageous. You have the strength here. So be confident in your own self. Be comfortable in your own skin. That's really important for you, Leo. Alright, dear. So this was the message. This was the guidance coming for you for this week, Leo. And I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive. Stay happy. Hello, Virgo. So this is your reading. आपका जो week है in terms of your career, in terms of your education, your job, business, basically your professional life. ये कैसे रहने वाले इस week, Virgo? Alright, we have the Magician here. When it comes to your personal life, well-being, happiness, peace of mind, ये week कैसा है? Alright, we have the card Page of Swords here. Alright, तो यहाँ पर first of all you have to be confident here in this week when it comes to your profession. You need to be confident. यहाँ पर आया हुआ है magic is alive in your life. What you need to be is successful will manifest. If you believe it, you can do it. So first of all, you need to, as I've told you, you need to be confident here in yourself. You need to trust yourself. Have faith in yourself. You can do anything and everything. आपके पास ऐसी opportunities आ सकती है इस week जो challenging हो. Challenges basically. Challenges and opportunities are kind of similar. आपको proof भी अपने आप को करना पड़ता है, and वो जो ये वक्त होता है अपॉर्चुनिटीज़ का, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क आपको लगता है, वक्त काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को कंप्लीट करने में लगता है, बट यस ये लाइफ है. दिस इज़ लाइफ जो है ऐसे चलती है जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है. वी हैव टू बिकम अ वर्कaholic पर्सन. एंड यहाँ इस वीक जो है
इट कैन हैपन कि आपके पास बहुत सारा काम है, यू कैन गेट ओवरवर्कड हियर, यू कैन ईजिली गेट ओवरवर्कड, बट यहाँ पर आपको पॉजिटिव भी रहना, ऑप्टिमिस्टिक भी रहना अपनी लाइफ में. यू विल गेट द सक्सेस यू वर मैनिफेस्टिंग, यू विल गेट द सक्सेस. हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव ट्रस्ट ऑन, आई मीन द कॉन्फिडेंस इज वेरी नीडेड. You need to be confident in yourself that you can achieve anything and everything. And the magician card is saying that you will have magical opportunities in your education, in your career, basically in your job or in your business. You will have certain opportunities which will make you gain something in life. Page of Swords here is representing your personal life. It is representing peace of mind. It is the, you can say, how things are going in personal life. So यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी, अगर हम मेंटल स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस की बात करें, यू हैव न्यू आइडियाज़. कहीं ना कहीं मन पर इतना बोझ नहीं है, इस वजह से क्रिएटिव आइडियाज़ आपकी तरफ आ रहे हैं और आप न्यू तरीके जो हो सोच रहे हो और उसको आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो और वो करते हुए भी नज़र आ रहे हो. जो आपके पास आइडियाज़ आ रहे हैं वो आप रियलिटी में बदलते भी जा रहे हो. यू आर वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, वट एवर आइडियाज़ वर इन योर माइंड, इन योर हेड, यू आर मेकिंग इट योर रियलिटी. ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो शोज सम न्यू कम्युनिकेशन कमिंग टूवर्ड्स यू. कोई ऐसी चीज़, कोई अच्छी न्यूज़ आपकी तरफ यहाँ पर आती हुई नजर आई, बिकॉज स्वॉर्ड्स द एनर्जी ऑफ एयर, इट्स द एयर एलिमेंट. एंड हवा में बातें करना, ये तो कहावत भी है. और जो हमारी आवाज़ है, या एक तरह से यू कैन से साउंड ट्रैवल्स इन वेव्स इन एयर, तो कहीं ना कहीं कोई इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आ सकती है इस वीक रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, जहाँ पर आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे जो आपको फ़ायदेमंद हो. कहीं ना कहीं कोई कोई न्यूज़ यहाँ पर आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है इन योर पर्सनल लाइफ. एंड यू आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक दिस वीक अबाउट योर वर्क, अबाउट योर लाइफ इटसेल्फ. यहाँ पर इतना ज़्यादा जो है एक एंजाइटी वाला फेस या डिप्रेशन वाला फेस नहीं नज़र आ रहा. यू आर अ फ्रेश एनर्जी, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है. काफ़ी फ्रेश आप फील करोगे इस वीक, हैप्पी फील करोगे, ऑप्टिमिस्टिक फील करोगे, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आपकी तरफ आते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. यहाँ पर वर्गो के लिए क्या गाइडेंस है? ऑलराइट, वी हैव द कार्ड लव. आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स. यहाँ पर जो है, अगेन, बी ऑप्टिमिस्टिक, बी ऑप्टिमिस्टिक. प्रैक्टिस करो कि आप हर चीज़ को अगर क्रिटिकली एनालाइज करते हो, तो हर पर्सन को अगर आप क्रिटिकली एनालाइज करते हो तो उसकी गुड चीज़ों पर, अच्छी हैबिट्स पर, और जो उसमें अच्छाई है उस पर ज़्यादा फोकस करो. बिकॉज नेगेटिविटी भी हमें दिख जाती है जब हम बहुत ज़्यादा क्रिटिकली एनालाइज करते हैं किसी को या किसी सिचुएशन को. सीधी सी बात है, बुरी और अच्छी चीज़ दोनों दिखती है, बट हमने अच्छी चीज़ पर फोकस करना है. और बुरी चीज़ को अगर आप ठीक कर सकते हो खुद, अगर आप में कोई, आपको ऐसा लगता है मुझ में कोई कमी है, तो आप उस चीज़ को जो है, उस कमी को दूर करने में भी अपना एफर्ट डालो. बट लुक टुवर्ड्स अ पॉजिटिव एंड द ऑप्टिमिस्टिक साइड ऑफ लाइफ. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. ऑप्टिमिज्म इज़ रियली इंपॉर्टेंट. हर चीज़ में एक अच्छाई देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वीक, और ये आपके लिए मैसेज भी आ रहा है टैरो की तरफ से. ऑलराइट डियर, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू वर्गो, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो Libra, so this is your reading. आपका जो वीक है in terms of your job, your business, your education, basically your career, ये कैसा रहता है? Alright, so we have the King of Cups here. When it comes to your personal life, health, happiness, your peace of mind, ये इस वीक कैसा रहता है? Alright, so we have पेज ऑफ वॉन्ड्स हियर. ओके, तो यहाँ पर जो है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो ये किंग ऑफ कप्स है, इट इज शोइंग ट्रस्टवर्दी, ऑनरेबल, डिवोटेड, cautious, someone you can completely trust, a situation that is safe, a solid romantic relationship, hidden but well-intentioned emotions, a charitable benefactor, seeing a counselor. So basically the King of Cups is a very mature energy. I mean, it does not really jump on things, or really does not really jump on emotional conclusions.
तो यहाँ पर आप अपने प्रोफेशन में काफ़ी ज़्यादा इमोशनली मैच्योर रहने वाले हो और कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपको खुश करे, आपको हैप्पी फील कराए। यहाँ पर आपके लिए कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है अपने करियर रिलेटेड, अपने एजुकेशन रिलेटेड। कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशंस है आपकी फेवर में नज़र आ रही है और आप अपने इमोशन से डील नहीं कर रहे हो इस वीक व्हेन इट कम्स टू योर करियर। यू आर वेरी प्रैक्टिकल हेयर और यहाँ पर जो भी आपके पास सिचुएशन आ रही है, वैसे पॉजिटिव ही सिचुएशन आएगी, फेवर में ही सिचुएशन रहेगी, बट अगर फेवर में नहीं भी है स्टिल आप उसको जो हो फेवर में करना जानते हो, कहीं ना कहीं इमोशन से नहीं, प्रैक्टिकल हो के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सोच रहे हो, गट फीलिंग से नहीं, अपनी जो एक जो कैलकुलेटिव माइंड है, एनालिटिकल माइंड है, उससे ये सब कुछ चीज़ें जो हो सोच रहे हो। ऑफ कोर्स जब आपको कुछ समझ नहीं आएगी देन ऑफ कोर्स यू आर गोना फॉलो द गट, बट यहाँ पर माइंड से काफ़ी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है इन योर करियर। Then we have Page of Wands here for your personal life, for your mental stability, relationship. यहाँ पर आपके जो भी relations है आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं एक्शन लेने के लिए, because Wands is the energy of action, fiery aggressive energy of action and passion of course. यहाँ पर आप अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आपको सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से भी बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स और बिकॉज ऑफ योर सिबलिंग और बिकॉज ऑफ योर रोमांटिक लव रिलेशनशिप यू आर क्वाइट स्टेबल इन योर करियर। समहाउ जो भी वो आपको चीज़ें कह रहे हैं, बता रहे हैं, आप उन चीज़ों को सीरियसली ले रहे हो, उस एडवाइस को फॉलो कर रहे हो और आपके पास न्यू आइडियाज़ यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आपके आसपास लोग हैं, कहीं ना कहीं जो आपके आसपास इन्वायरमेंट है वो आपको इंस्पायर कर रहा है। सो एक ओवरऑल अगर हम ये वीक देखें और इस वीक की वाइब्रेशन देखें, काफ़ी न्यू चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है और आपकी फेवर में सिचुएशंस नज़र आ रही है। आई एम जस्ट नॉट गिविंग यू अ पॉजिटिव रीडिंग बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग, एंड द कार्ड्स आर सेइंग दैट दिस इज गोना बी अ वीक जहाँ पर आप काफ़ी कुछ जो हो अचीव कर सकते हो, क्योंकि माइंड से भी स्टेबिलिटी और माइंड एक तरह से काफ़ी ये लगा लो कि मोटिवेटेड है, एंड व्हेन वी आर मोटिवेटेड हम मुश्किल से मुश्किल काम भी जो है ईजिली कर लेते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए इस वीक नज़र आ रही है। आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है यहाँ पर, लीब्रा के लिए क्या गाइडेंस है? ऑल राइट, सो वी हैव द बैलेंस कार्ड। ऑल राइट, तो बैलेंस इज सेइंग कि आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ perfect harmony into my world and I do so without judgment. तो यहाँ पर जो है एक परफेक्ट हार्मनी आपके लिए नज़र आ रही है। एज ऑफ टोली ओवरऑल वीक काफ़ी आपका अच्छा जाने वाला है, बैलेंस्ड जाने वाला है और एक तरह से जहाँ पर पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस है और इमोशंस में भी बैलेंस है। ना तो अच्छी चीज़ को देख के बहुत खुश हो रहे हो और ना बुरी चीज़ को देख के, क्रिटिसिज्म को देख के उदास हो रहे। एक न्यूट्रल पोजीशन आपकी यहाँ पर नज़र आ रही है और गाइडेंस भी है कि हमने न्यूट्रल रहना है, ना हमने कोई अच्छी सिचुएशन को देखकर बहुत ही खुश हो जाना है और ना हमें बहुत ही उदास हो जाना है, हमें न्यूट्रल रहना है। एंड यू हैव द you can say you have the power to be neutral this week. So this is what I'm getting here and this was the reading for you Libra. इस वीडियो रीडिंग को ज़रूर लाइक करना और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग के टाइम। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो स्कॉर्पियो, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर जॉब, बिजनेस, बेसिकली योर प्रोफेशनल लाइफ, ये कैसा रहता है। All right, we have the card Queen of Swords here. When it comes to your personal life, when it comes to your peace of mind and your basically family life, ये कैसा रहता है इस वीक। ऑल राइट, वी हैव किंग ऑफ पेडिकल्स। ऑल राइट, किंग एंड क्वीन, इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पर जो है स्वॉर्ड्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इट इज सेइंग ब्रिलियंट, experienced, humorous, judgmental, releasing situations or people that no longer serve you, seeing the humor in difficult situation, focusing on career, divorced or unmarried individuals. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है इन टर्म्स ऑफ योर करियर कि यू नीड टू बी कट थ्रोट, यू नीड टू टेक स्ट्रिक्ट डिसीजन। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ वेरी
again independent, and an energy which does not really rule with emotions. It rules with practical things. You need to be headstrong, you need to be practical in your work. You cannot really take decision on the basis of emotions. ये इसकी guidance यहाँ पर नहीं है. No, you have to take decision by analyzing situation, pros और cons गिनना, उसके बाद ही कोई डिसीजन यहाँ पर आपने लेना है. प्रैक्टिकली चलना है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में. ये आपके लिए स्कॉर्पियो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है. एंड दैट डज नॉट मीन दैट अगर प्रैक्टिकल चलना है तो इट्स अबाउट सीरियसनेस. नो 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 नो. You have to be humorous. You need that humor, you need that happiness also to work, but you need to be practical at the same time. That's really important. एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेनिकल्स है जो कि शो कर रहा है अगेन पेनिकल्स की एनर्जी इज द अर्थ एनर्जी, स्टेबिलिटी की एनर्जी. सो आप माइंड से जो हो, आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो आप फील कर रहे हो, स्टेबल आप रहने वाले हो इन टर्म्स ऑफ योर इमोशनल वेलबींग. यू आर गोना बी क्वाइट स्टेबल, और अगेन यू आर गोना थिंक प्रैक्टिकली ऑल्सो इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल. तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी, प्रैक्टिकल वाइब आपके लिए नज़र आ रही है इस वीक के लिए स्कॉर्पियो. और आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है स्कॉर्पियो इस वीक के लिए? ऑल्दो वैसे ये जो किंग ऑफ पेनिकल्स है, और इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग यू मे स्पेंड मोर टाइम विद योर ग्रैंड फादर और योर फादर और एनी फादरली फिगर और इवन अ मेंटोर. सो यहाँ पर डाउट, आई रिलीज the need to know all the answers. Sometimes it's okay to feel a little confused. Sometimes it is not really important to clear your every doubt and get to know all answers in life. अगर सभी आंसर मिल जाएंगे लाइफ में तो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी, क्योंकि हमें सब कुछ पता होगा ऑलरेडी और हमें सब कुछ आता हो गया, आंसर सारे पता होंगे. वो जो थ्रिल है या वो जो एडवेंचर है वो नहीं रहता. सो इट्स ओके टू फील दैट पता नहीं क्या होगा. वो जो अनसर्टेनिटी है, इट्स ओके इफ़ यू फील दैट टू, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ टाइम तक जो है ऐसा हो सकता है यू वर टेकिंग डिसीजंस बिकॉज ऑफ योर इमोशंस. Your emotions were ruling your decisions, but this week you're like, let me just be practical. बहुत हो गया इमोशनल डिसीजन लेकर, let me be practical, let me see how I take my decision practically, and क्या रिजल्ट आता है बेसिकली, क्या रिजल्ट आता है. सो यहाँ पर जो है यू हैव टू रिलीज दिस नीड टू नो ऑल द आंसर. इट्स ओके इफ़ यू डू नॉट नो द आंसर. इट्स ओके कि ये एक सस्पेंस बना हुआ है, बट डू नॉट वरी, ये सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा. यू विल गेट द आंसर्स, बिकॉज इस वीक आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होके चल रहे हो, और जो भी आप डिसीजन ले रहे हो इस वीक वो ठीक ले रहे हो, राइट ले रहे हो. सो डू नॉट वरी. Alright dear, so this was the message coming for you Scorpio this week, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. हेलो Sagittarius, so this is your reading. आपका जो वीक है in terms of your career, in terms of your job, business, basically your professional life, ये कैसा रहने वाला है. Alright, we have the 3 of Cups here. When it comes to your personal life, emotional well-being, family, health, happiness, alright, we have the Page of Swords here. So जो ये 3 of Cups है, it is saying news worth celebrating, joyful announcements like engagements, wedding, pregnancy or graduation, a time for gratitude, close communities or chosen families. सो यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो अपनी जो अपने प्रोफेशन की वजह से. मे बी यू आर गेटिंग अ प्रमोशन, मे बी यू आर ग्रेजुएटिंग, मे बी समथिंग, सम इंसेंटिव इज गिवन टू यू और बोनस और समथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू, जो कि आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा खुश करके जाता है. एक सेलिब्रेशन का टाइम यहाँ पर आपके करियर से रिलेटेड नज़र आ रहा है. कुछ ना कुछ आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपने करियर की वजह से, आप कुछ अचीव कर रहे हो इन योर करियर एंड यू आर हैप्पी व्हाट यू अचीव. ये चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है. पॉजिटिव न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है जो आपको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा फुलफिल करती हुई नजर आ रही है. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हियर इज शोइंग योर मेंटल हेल्थ स्टेबिलिटी, बेसिकली या पर्सनल लाइफ, फैमिली एज वेल. तो यहाँ पर जो फैमिली है उनकी तरफ से भी कोई न्यूज़ आ सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है जिसको आप यू कैन यूटिलाइज दैट इन योर वर्क एज वेल. मे बी सम आइडिया, दे गिव यू सम आइडिया दैट कैन हैपन. और यहाँ पर पेज एक काफ़ी न्यू, नोवेस, इनोसेंट एनर्जी है, तो माइंड भी आपका काफ़ी ज़्यादा ना एक क्रिएटिव रहेगा. एंड इनोसेंट, और जो मैंने जैसा भी कहा एक इनोसेंट एनर्जी है, और
कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेज को, तो ये कौन से सच में लोग होते हैं? बच्चे। चिल्ड्रन जो है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है क्योंकि उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनके पास बहुत सारा वक्त है, उस वक्त में बहुत कुछ बच्चे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है एक तरह से वही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जो हो सेजिटेरियस इस वीक मन से जो हो काफ़ी हल्के रहने वाले हो, आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं फील होगी, आप काफ़ी लाइट फील करोगे। और क्योंकि आप लाइट फील करोगे, सरल स्वभाव आपका है, तो जो भी आपके पर्सनल लाइफ में सिचुएशंस हैं बड़े अच्छे से उनसे डील कर लेते हो। कोई यहाँ पर ऐसे लड़ाई नज़र नहीं आ रही, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है जो आपको खुश करके जाए, कोई इंस्पायर करके जाए, इंस्पिरेशन देके जाए, तो ये चीज़ आपके लिए नज़र आ रही है सेजिटेरियस। आपके लिए गाइडेंस क्या है टैरो की तरफ से? सेजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस है इस वीक के लिए? ऑल राइट, we have empathy. I am open to seeing both sides of a situation. आपके लिए guidance भी है that you have to see both sides of the situation. You cannot just see one side and be like कि ये सही है. No, when you have to take a decision, you have to see both aspect, both sides, and then have to make a decision. Then have to make an image about somebody. So be empathetic, that's a guidance, and see both situations. Don't just be like ये person सही है तुम गलत हो. No, step into their shoes as well. You have to see both sides of the coins. That's important for you. Alright dear, so this was the reading, this was the message coming for you Sagittarius, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Capricorn, so this is your reading. So for you इस week आपके लिए क्या message है in terms of your career, in terms of your job, business, basically your professional life. All right, we have the 5 of Wands here. Okay, competition काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है. So when it comes to your personal life, when it comes to your mental health, happiness, stability, family life, basically the personal life, so we have 8 of Swords. ओके, थोड़ी यहाँ पर उलझन आपके लिए नज़र आ रही है कि प्रिकॉन सबसे पहले आपके प्रोफेशन के लिए conflicts with others caused by opposing opinions. Walk away from drama unless the situation is really worth your time. Then stand up for yourself. Very ambitious people. So जो भी वर्क है आपका, जो भी काम है आपका इस वीक, Capricorn, you are gonna be really very passionate about it. You want to prove yourself, but the thing is, the situations in this week may not be in your favor, and you want to do certain things, but people are opposing you. People do not want you to do those things. सो कहीं ना कहीं यहाँ सिचुएशन आपके फेवर में नहीं नज़र आ रही, बट यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ व्हेन यू फील दैट अब तो बहुत ही ज़्यादा हो गया एंड आई हैव टू, देन यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, अदरवाइज यू आर जस्ट वेस्टिंग योर एनर्जी. सो इफ यू रियली फील कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, देन स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, हैव दैट बैकबोन, हैव दैट, you have to stand up for yourself. अगर आपको लगे बहुत ही ज़्यादा हो गया, then you have to stand up for yourself. But if you think कि we can avoid drama, then of course avoid it. You don't need to stand up for yourself then, because दूसरों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो समझना नहीं चाहते हैं. तो अगर वो आपके काम में बहुत ही ज़्यादा एक ऑब्स्टिकल, बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन रहा है, then of course you have to get them aside and you have to move, right? But यहाँ पर सिचुएशन में भी आपके फेवर में ना हो, काफ़ी कंपटीशन आपको लगे, कन्फ्लिक्ट्स हो दूसरे लोगों के साथ, तो ये सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना पाथ छोड़ दोगे. यू हैव टू स्टिल वर्क. दैट इज़ समथिंग, आई मीन दैट्स लाइफ. We also have 8 of swords, which is showing your mental health, stability. तो यहाँ पर आप उलझा हुआ महसूस करने वाले हो, स्टक महसूस कर सकते हो, और एक तरह से you are only the one, और आई शुड से कि आप ही हो जिसको ये फील हो रहा है. अगर कोई और आपको देखे तो उसको ये नहीं फील होगा कि आप मुश्किल से गुजर रहे हो, बिकॉज समहाउ आप जो हो दूसरों को शायद ये बता ही नहीं रहे हो कि आप इस सिचुएशन से निकल रहे हो, अपने लव्ड वंस को शायद ये बता ही नहीं रहे हो कि आप इस सिचुएशन से, ये मुश्किल से निकल रहे हो. उनको शायद आपके बारे में पता ही नहीं है कि यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, बट यू आर गोइंग थ्रू ए डिफिकल्ट टाइम पीरियड हियर, बट आप वो किसी और को नहीं बता रहे. द गाइडेंस इज टू चेंज द पर्सपेक्टिव, to change the perspective.
अगर ऑब्स्टिकल्स, कॉम्पिटिशन, हर्डल्स, कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाकर जा रहे हैं. यू हैव अ कार्मिक कनेक्शन विद दीज पीपल, कार्मिक कनेक्शन विद दिस सिचुएशन. आपके लिए तो कितना अच्छा है कि आप ये कार्मिक कनेक्शन आप कट करते हुए निकल रहे हो आगे, कि नेक्स्ट लाइफ टाइम में अब वो आपको कार्मिक कनेक्शन तंग नहीं करेंगे. सो यू शुड बी thankful that these obstacles are coming because these are making you stronger and is making you realize कि आप किन चीज़ों में अच्छा और किन चीज़ों में नहीं अच्छे, किस चीज़ पर आपको ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सक्सेसफुल होने के लिए. सो यू नीड टू चेंज द पर्सपेक्टिव हियर. दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कैप्रिकॉर्न. आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है इस वीक के लिए? कैप्रिकॉर्न के लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक. All right, we have happiness. I am aware that being happy means that I am on the right path. तो यहाँ पर follow your happiness as well. You cannot be just कि अरे लाइफ इज़ टफ, लाइफ इज़ हार्ड, तो मुझे भी जो है सीरियस होके डिसीजन लेने पड़ेंगे. नो, जब भी आपको खुश होने का मौका मिले तो खुश भी रहना है. ऑफकोर्स अगर बुरी सिचुएशंस है, बुरा वक्त है, तो अच्छा वक्त भी आएगा. वक्त का क्या है, वो तो चलता रहता है, यानी वो किसी के लिए रुकता नहीं है. तो अच्छा वक्त भी आएगा. एंड यहाँ पर जो अपनी हैप्पीनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, वो वाली चीज़ें ज़रूर करनी है आपने, स्पेशली इस वीक, जो आपको खुश करती है. चाहे वो कलरिंग है, पेंटिंग है, या फिर स्पोर्ट्स खेलना है, या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है. वो चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप हर टाइम लड़ते रहे, अगर आप हर टाइम काम करते रहे, तब भी आप डाउनफॉल में आ जाओगे. क्योंकि खुशी जो है वो आत्मा की खुराक है, वो आत्मा का खाना है. तो यहाँ पर मेडिटेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, और अपनी खुशी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जो भी चीज़ आपको खुश करती है, अगर वो दूसरों को तकलीफ नहीं देती, तो आपने वो चीज़ ज़रूर करनी है. फॉलो योर हैप्पीनेस. दैट्स द की. दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट. All right, dear. So this was the guidance, this was the message coming for you for this week, Capricorn, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Aquarius, so this is your reading. आपका जो week है in terms of your job, business, in terms of your education, basically your professional life, ये कैसा रहने वाला है. All right, we have the Wheel card here. And when it comes to your personal life, happiness, well-being, health, ये भी कैसा रहने वाला है. All right, so we have the Knight of Cups. Okay, amazing. तो यहाँ पर Wheel card is showing and it is saying a fresh new start or the end of delay, sudden or unexpected progress, a very positive change in your life, travel or a new vehicle. The wheel is about the change. It's about कि जो अटके हुए काम थे वो अब आपके जो है बनते हुए नज़र आएंगे, complete होते हुए नज़र आएंगे. It's about completion as well. It's about travel as well. तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी एजुकेशन में, अपने वर्क में, करियर में, जॉब में कहीं ना कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो. कोई न्यू प्रोजेक्ट आपकी तरफ आ सकता है, और जो अटका वो प्रोजेक्ट था वो आपका जो है कंप्लीट हो सकता है. सबमिट कर सकते हो आप प्रोजेक्ट अपना, और यहाँ पर जो है सडनली चीज़ें आपके फेवर में होने लग जाएगी. तभी तो यहाँ पर प्रोग्रेस भी नज़र आ रही है आपके लाइफ में, आपके करियर में स्पेशली. काफ़ी आप प्रोग्रेस करते हुए नज़र आ रहे हो. पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में. और जो भी प्रोग्रेस है, आप चाहते तो थे कि बहुत टाइम से मतलब हो जाए प्रोग्रेस. हर किसी को जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, वो प्रोग्रेस चाहिए. बट हर किसी को या हर कोई जो है अपनी स्ट्रगल से गुजरता है, अपने बुरे और अच्छे वक्त से निकलता है. और यहाँ आपका अच्छा वक्त आपके करियर में आता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर आपको सडन प्रोग्रेस मिलेगी, और आप आपके जो डिलेज थे वो सारे डिलेज जो है ख़त्म हो जाएंगे. और कोई यहाँ पर आप जो हो नया प्रोजेक्ट शुरू करते हुए नज़र आ रहे हो. जो ये नाइट ऑफ कप्स इट इज शोइंग योर personal life, it is showing your peace of mind. कहीं ना कहीं you are romanticizing things in your life, in your personal life. यहाँ पर जो हो आपकी expectations थोड़ी बढ़ी हुई है अपने loved one से, which is not good. ना तो हमें किसी और से एक्सपेक्ट करना है इतना, ना हमें अपने आप से भी एक्सपेक्टेशन रखनी है, क्योंकि हम खुद की एक्सपेक्टेशन के बोझ के तले कई बार दब जाते हैं, और वो हमें चीज़ नहीं अच्छी लगती, वो हमें पेन देती है. तो यहाँ पर थोड़ी एक्सपेक्टेशंस कम करने की ज़रूरत है. बट येस, इफ़ यू आर इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, देन दैट पर्सन कैन गिव यू सरप्राइज, कैन राइट यू रोमांटिक लेटर्स, कैन ब्रिंग यू फ्लावर्स, कैन मेक यू ट्रैवल टू डिस्टेंट प्लेसेस. किंग नाइट ऑफ कप्स जो है और द व्हील कार्ड बोथ रिप्रेजेंट्स ट्रैवल. सो सम ऑफ यू कैन डेफिनेटली ट्रैवल
travel either because of work or because of your family, love, relationship. कहीं आप थोड़ा घूमने फिरने जा सकते हो, उसके चांसेस काफ़ी दिख रहे हैं यहाँ पर. एंड समहाउ यहाँ पर जो है पीस ऑफ माइंड की बात करें तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा है दूसरों से, तो उसको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है यहाँ पर. तो ये चीज़ आपके लिए नज़र आ रही है. ऑल्दो पीस ऑफ माइंड यू हैव, यू आर ऑप्टिमिस्टिक हियर, यू आर बीइंग पॉजिटिव हियर, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. और खुश हो कि आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो, और खुश ही हो अपने इस वीक में. कोई अगर ऐसी सिचुएशन है जो आपको अनहैप्पी फील कराती है, तो स्टिल आप उस अनहैप्पी फेज से जल्दी ही एक हैप्पी फेज में शिफ्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हो. तो आपके लिए गाइडेंस क्या है इस वीक, एक्वेरियस? ऑल राइट, वी हैव एडवर्सिटी. It is saying, I accept that challenges are the best way to learn. So कहीं ना कहीं जो ये अच्छा वक्त आपका आ गया है, तो अब आपको थोड़ी बातें भी करनी आ रही है कि अरे मेरा बुरा वक्त चल रहा था, चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, मुझे ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, पर मैं बहुत कुछ सीख के गया उन कंपटीशन और चैलेंजेस और उन हर्डल से. बहुत कुछ मैंने सीखा, तब जाके मैं ये अच्छा वक्त देख रहा हूँ, तब जाके मैं प्रोग्रेस देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने जो एडवर्सिटी, अपने चैलेंजेस थे, उनसे लर्न करा है, उनसे सीखा है. गलतियाँ जो मुझसे होती थी, अब वो गलती मैं नहीं करता, इस वजह से मुझे सक्सेस आ रहा है. ये कर्म प्रधान दुनिया, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है. वक्त अच्छा आ रहा है, फॉर्चुनेट टाइम है, बट आप एफर्ट भी जो है राइट डायरेक्शन में करते हुए नजर आ रहे हो, इस वजह से आपको प्रोग्रेस मिल रही है यहाँ पर. सो कीप दैट इन माइंड. Alright dear, so this was the reading, this was the message coming for you Aquarius, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Pisces, so this is your reading. आपका जो वीक है in terms of your education, in terms of your job and your business, basically your professional life, ये कैसा रहने वाला है? Alright, we have the 7 of Cups here. When it comes to your personal life, when it comes to mental health, stability, happiness, well-being, ये कैसा है इस week? All right, we have the 3 of Cups. All right, 3 of Cups. Cups की एनर्जी बहुत ज़्यादा, यानी कि जो भी ये वीक है काफ़ी ज़्यादा आपको इमोशनली आपको जो है फुलफिल महसूस कराएगा. एंड यहाँ पर जो 7 of Cups है, इट्स अबाउट मेकिंग अ चॉइस. यू हैव many things going on, you have to make a choice. Stop procrastinating or over analyzing, get clarity on what you desire and move forward. Too many options, addictions. So यहाँ पर जो है you may even choose something in which you have to come out of your comfort zone. You can choose something in your life which makes you come out of the comfort zone and makes you work really hard. But जो भी ये options हैं सारी बहुत अच्छे हैं. सभी जो ऑप्शन है, ये आप फील करते हो कि मैं कोई भी ऑप्शन चूज करूँ मेरा फ्यूचर ब्राइट ही है. ये आप जानते हो ऑलरेडी, ये आप जानते हो, बट स्टिल यू हैव टू चूज वन थिंग. मेनी ऑप्शन, यू हैव टू चूज वन. और जो भी आप चॉइस बनाओगे, यू आर इन फुल कंट्रोल ऑफ दैट एंड यू आर गोना बी इमोशनली फुलफिल्ड विद योर चॉइस एज वेल. ये नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में आप पछताओगे कि मैंने अरे ये चॉइस बना ली थी अपनी लाइफ में, अब मुझे बड़ा रिग्रेट है. ऐसा नहीं है. यहाँ पर जो भी आप चीज़ मतलब जो भी आप चॉइस बना रहे हो, यू आर गोना बी प्राउड ऑफ दैट चॉइस एंड यू आर गोना फील हैप्पी दैट यू चोज दिस थिंग. एंड चूज द थिंग विच मेक्स यू हैप्पी, चूज द थिंग विच यू कैन सी कि आप जो हो लॉन्ग टर्म तक कर सकते हो, बोर नहीं होगे, और कहीं ना कहीं आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर भी आते हुए नजर आ रहे हो. यू आर काइंड ऑफ ऑल्सो चैलेंजिंग योर सेल्फ, बट यू आर फॉलोइंग योर पैशन. दैट्स वाई यू आर गोना बी हैप्पी आफ्टर चूजिंग दैट चॉइस. यहाँ पर जो है 3 of Cups इज शोइंग दैट यू आर काइंड ऑफ सेलिब्रेटिंग. मे बी जो आपने चॉइस बनाई है यहाँ पर, उस चॉइस को चूज करने के बाद यू आर लाइक यस आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट नाउ बिकॉज आई चोज द बेस्ट थिंग फॉर माई सेल्फ. लेट मी जस्ट गैदर माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, माई क्लोज फैमिली, माई कजन्स, जिनसे मैं अपनापन फील करता हूँ, उनके साथ आप जो हो सेलिब्रेट यहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ में करते नजर आ रहे हो इस वीक. सम हाउ यू आर सेलिब्रेटिंग, मे बी इट्स योर बर्थडे, मे बी योर family is organizing something, but there is some celebration going on, and that celebration can also be related to the choice you make in your life. You are happy about your choice. और यहाँ पर जो खुश काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हो इस वीक आप Pisces. So आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस क्या है इस वीक के लिए? Pisces के लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है? All right, we have patience. So
I accept that everything happens in divine order, so have patience. यहाँ पर जो है, you know that the future is bright, बट अगर आप इम्पेशेंट होने लगे, क्या रिजल्ट होगा? चीज़ें आप जल्दबाजी में करोगे और ऐसा हो सकता है आप थोड़ी गलत चीज़ें, मतलब अपना जो सबमिट कोई चीज़ करनी है और आपने जल्दबाजी में कर दी और उसमें एरर्स हैं, उसमें गलतियां हैं, तो इम्पेशेंट का क्या फिर रिजल्ट निकला? एक तरह से फेलियर। तो यहाँ पर जो है आपने पेशेंटली काम करना है, पेशेंस के साथ सभी से डील करना है, लोगों से भी, अपने लव्ड वन से भी, और अपने वर्क को भी बड़ा पेशेंटली करना है, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड वे से करना है, और अपने से एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम रखनी है। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। हम दूसरे अगर हमें कह दे हम तुमसे बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं, तुम बड़ा अच्छा करोगे, तो हम कई बार बोझ फील करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो पर्सन हमसे बहुत एक्सपेक्ट कर रहा है, बट हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हम भी बहुत अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जो हमें कई बार डाउनफॉल में ले आती है। सो डू नॉट वरी अबाउट अदर पीपल कि वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मुझे तो ये चीज़ क्रैक करनी है, मुझे तो एग्जाम क्रैक करना ही करना है। नो, इट्स अबाउट योर ओन हैप्पीनेस एज वेल, एंड यू आर गोना चूज समथिंग विच मेक्स यू हैप्पी। और यहाँ पर जो है टाइम ले लो, थोड़ा वक्त ले लो, और उसके बाद चॉइस बना लो। कोई जल्दबाजी यहाँ पर नहीं है, आराम से अपना डिसीजन आप ले सकते हो। और जो भी आप डिसीजन लोगे, यस, 7 ऑफ कप्स इज मेकिंग श्योर कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो आपके एक तरह से आपको अपनी लाइफ में आगे लेकर जाएगा, और आप प्राउड महसूस करोगे उस डिसीजन की वजह से। बट बी पेशेंट व्हेन यू आर टेकिंग अ डिसीजन इन योर लाइफ, when you are submitting something in this week, एंड ऑफ कोर्स जो भी आपने चीज़ सबमिट करनी है उसको पहले री इवेल्युएट ज़रूर करना। जल्दबाजी में कोई चीज़ मत करना, जल्दबाजी में कोई चीज़ सबमिट मत करना, हो सकता है उसमें एरर्स हो, तो ये आपके लिए गाइडेंस भी है। ऑलराइट डियर, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, दीज वर द मैसेज कमिंग फॉर यू Pisces, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी।